Good morning, students. In data communication, we are discussing about data link layer, which has three basic functions. We are discussing data link layer, which has three basic functions. Two of these we already discussed. The three basic functions are line, TCP, flow control, and last one is error control. These are three basic functions of data link layer. As in our previous videos, we already discussed line TCP, which has two ways. First, for isolated computer, that is enquiry acknowledgement method. Second one for client server architecture, all select. After that, we discussed the flow control. How data can be matched at the sender level and destination, or we can say receiver level. Flow control have two mechanisms, two methods. First one is stop and wait AIQ, yeah, stop and wait protocol. Second one is sliding. Now we move on error control. आज अपन इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, एरर कंट्रोल के बारे में. Before moving forward on error control, we exactly have to know what is flow control, because the transmission in data link layer depends on that particular segment. अपन एरर कंट्रोल की तरफ बढ़े उससे पहले आपको किसका पता होना चाहिए? इसका फ्लो कंट्रोल. रीजन क्या है? बिल्कुल सिंपल है कि फ्लो कंट्रोल डिसाइड करता है कि डेटा कैसे जाता है. अब डेटा जैसे जाएगा वैसे ही एरर होगी उसमें, जिस तरीके से जाएगा उसी तरीके से एरर होगा. So we can say an error control is mainly dependent on flow control mechanism. Error control जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपना flow control mechanism के ऊपर. So we discussed the error control. First of all, we will define what is error control. अपन परिभाषित करेंगे कि एरर कंट्रोल होता क्या. There are two words, error plus control. Control means manage during data transmission from sender to receiver, manage during data transmit in network by data link layer. But what is error? An error means a bug, a mistake which occurs during data transmission. That is error. We can simply define error as a bug or a we can say a frame lost, an acknowledgement lost, something like that. Damage of signal, damage of packet, something like that. Error क्या होता है? वो bug होती है. जैसे suppose there is a sender and there is a receiver. It transmits data 01101. Suppose that is data is transmitted to receiver. That particular which has 01101 5 bits, and at receiver level it receives at suppose 01100. It means the last bit which we transmitted is 1, but here we received it at 0. That is known as error. जब अपन कोई भी बिट लेवल में भेजते हैं डेटा को सेंडर से रिसीवर के पास, जब सेंडर से भेजते हैं तो उस टाइम उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, और रिसीवर के पास पहुंचे तो वो दूसरे चीज में बदल जाए. उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? एरर कहते हैं. हाउ एरर कैन कंट्रोल इन डेटा ट्रांसमिशन?
तरीके से होती है डेटा ट्रांसमिशन, उसी तरीके से होती है जैसे अपना फ्लो कंट्रोल 2 वे में होता था। Which type of 2 ways? Stop and wait. And sliding window. सेम उसी को अपन बोलते हैं एरर कंट्रोल के अंदर स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट एंड स्लाइडिंग विंडो ARQ। Its full form is sliding window automatic request. It simply means stop and wait ARQ handles stop and wait data transmission. It controls error only when stop and wait protocol used for data transmission or for flow control. Stop and wait कब लागू होती है error control? जब stop and wait के माध्यम से data transmit हो तब। If data transmitted using sliding window protocol, it means we have to use or network have to use sliding window ARQ. Sliding window automatic request. A sliding window can further divide go back and method. स्लाइडिंग विंडो को अपन 2 भागों में तोड़ सकते हैं। फर्स्ट इज गो बैक एंड मेथड एंड सेकंड वन इज सेलेक्टिव रिजेक्ट। Selective reject method, or we can say go back and ARQ or selective reject ARQ method। तो ये टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर है एरर कंट्रोल का। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म मींस वी हैव टू क्लासिफाई एरर कंट्रोल इनटू 2 वेज, स्टॉप एंड वेट ARQ, sliding window ARQ, and sliding window ARQ can be implemented by 2 ways, go back and method, selective reject ARQ method। ये क्या है? Now we start with stop and wait ARQ। First method of error control is stop and wait ARQ। We have to know where we put stop and wait ARQ। अपन कहां पर stop and wait ARQ का यूज करेंगे? When data transmission holding stop and wait ARQ, stop and wait protocol as a flow control। जिस मेथड में या जिस पर्टिकुलर अपना डेटा ट्रांसमिशन है उसमें स्टॉप एंड वेट मेथड का यूज करते हुए फ्लो कंट्रोल हो रहा हो, वहां अपन एरर को स्टॉप एंड वेट ARQ के माध्यम से यूज करेंगे। So we have to know what is stop and wait method for data transmission। Stop and wait method क्या होता है? In that particular method, if there is a sender S and there is a receiver R, उसमें एक सेंडर S है और एक रिसीवर R है। अपने लास्ट वीडियो में पढ़ाया, ये इसको डेटा भेजता है D1 और डेटा 1, ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है A1। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सेंडर S ट्रांसमिट डेटा फर्स्ट पैकेट ऑफ डेटा एज D1 and after successfully accessing data 1 at receiver end, receiver again transmit its acknowledgement at A1, then it transmit to D2, it again provide acknowledgement at A2। this process is going on and on and on। ये प्रोसेस चल रहा है, इसको अपन बोलते हैं स्टॉप एंड वेट।
अब देखिए गड़बड़ कहां होती है, एरर कंट्रोल कहां होती है। फर्स्ट, if S transmit data to R, it means sender transmit data to receiver and it is lost during data transmission. अगर सेंडर S रिसीवर के पास डेटा पैकेट भेजता है कोई और वो नेटवर्क में खो जाए, लॉस्ट हो जाए, दैट इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ एरर। उस केस में क्या होगा और वो कैसे हैंडल होगा? वो इसके पास पहुंचेगा नहीं, आपके पास R does not access any packet because it may lost in its network or during data transmission. Then it does not provide any acknowledgement, ये acknowledgement नहीं भेजेगा। ये acknowledgement नहीं भेजेगा तो सेंडर अगला पैकेट नहीं भेजेगा। It means data transmission is closed for temporary। ये कंडीशन हो सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? After a particular time interval, suppose that is 1 second, अगर 1 सेकंड तक या कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, उस टाइम तक वापस इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है सेंडर के पास, then it retransmit data पैकेट D1, ये पुनः उस डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। ये इसका सॉल्यूशन है। दैट इज स्टॉप एंड वेट ARQ मेथड। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टॉप एंड वेट ARQ मेथड बोलते हैं। अगर इसके पास डेटा पैकेट नहीं पहुंचा है तो भी वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको भेज देता है। ऐसा ही सेम केस कैसे हो सकता है? इन सिमिलर वे इट कैन बी इंप्लीमेंटेड एट रिसीवर। सपोज इसमें D1 भेजा, D1 is successfully transmitted or we can say D1 is successfully reached as R के पास पहुंच गया रिसीवर के पास। इसने इसकी एक्नॉलेजमेंट दी A1, दैट इज लॉस्ट इन नेटवर्क, वो लॉस्ट हो जाती है। उस केस में क्या, वो भी हो सकती है। दो ही कंडीशन बनती है फॉर एरर इन स्टॉप एंड वेट ARQ, इफ डेटा इज लॉस्ट और इफ एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट। अगर ऐसी स्थिति हो तो उस केस में भी वो क्या करेगा? इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचेगी, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वापस D1 भेज देगा। वापस किसको भेजेगा? वही पैकेट D1 वाला है, वापस भेज देगा। वापस भेजेगा तो इसके बाद दो D1 पहुंच जाएंगे, ये भी D1 और ये भी D1। इट मींस दो पैकेट पहुंचने का कोई नुकसान नहीं है। ईच पैकेट है इट्स सीक्वेंस नंबर, हर एक पैकेट का एक निर्धारित सीक्वेंस नंबर होता है। अगर ये डुप्लीकेट हो जाता है तो वो डुप्लीकेट को डिस्कार्ड कर देता है, डिस्कार्ड होने का मतलब डिलीट कर देता है और पुनः उस डुप्लीकेट की एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। सो दैट इज स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होता है? अगर डेटा लोड हो जाता है तो भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इफ डेटा पैकेट इज लॉस्ट, sender again retransmit that particular data packet. On the other hand, if acknowledgement is lost, then it must, or we can say it again retransmit data packet again. But on that particular method, D1 or we can say data 1 or that particular packet can be duplicated at receiver. Then receiver must discard that particular sequence number packet and again retransmit its acknowledgement. दोबारा इसके एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। ये इसका स्टॉप एंड वेट ARQ का फंडा है। If we are using or if network is using sliding window protocol, then it use sliding window ARQ, स्लाइडिंग विंडो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट। तब ये स्लाइडिंग विंडो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट को यूज करता है। स्लाइडिंग विंडो क्या होता था? इन दैट पर्टिकुलर देयर इज ए सेंडर एंड ए रिसीवर। स्लाइडिंग विंडो में इसको सेंडर और रिसीवर इस तरीके से, ये कॉन्टिन्यूसली एक विंडो साइज का है, लगातार इसके पास पैकेट भेजा, D1 भेज दिया,
D2 भेज दिया, D3 भेज दिया, D4 भेज दिया, ऐसे कॉन्टिन्यूसली भेजता रहता है। और ये इनकी एक्नॉलेजमेंट भेजता रहता है। A1 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, ये इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई A2 की, ऐसे ही ये इसके बाद D5 भेज दिया। ये कब तक भेजता था? सपोज इसका विंडो साइज is 7. It means it can transmit data or it can continuously transmit data as 7 packets before, or we can say not getting its acknowledgement। 7 लगातार पैकेट को भेज सकता है, चाहे उसको acknowledgement वापस ना मिले। हाँ, 7 तक के पीछे वक्त भी नहीं मिलेगी, फिर वो रुके, उसके बाद चले। दैट इज स्लाइडिंग विंडो। ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का वर्किंग है। अब इसके अंदर अपन दो तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं। देयर आर 2 ways टू इंप्लीमेंट स्लाइडिंग विंडो ARQ। फर्स्ट वन इज गो बैक एंड ARQ। Go back and ARQ. Go back and ARQ. What is go back and ARQ? Go back and ARQ क्या है? And its name suggests, go back and ARQ का मतलब सिंपल है कि जो मेथड या जिसके थ्रू डेटा जा रहा है, सपोज समझिए इसको, इसने D1 भेजा, D2 भेजा, D3 भेजा, D4 भेजा, D5, suppose, and it provided acknowledgement. Suppose that it does not get D3, D3 is lost. D3 क्या हो जाता है? lost हो जाता है, नेटवर्क के अंदर कहीं खो गया, सपोज करते हैं। उस केस में क्या होगा? इसने D2 तक एक्नॉलेजमेंट भेज दी, उसके बाद D4 आ, इट रिसीव्ड D1, D2 एंड D4। जैसे ही रिसीव करेगा, when receiver access D1, D2, after that D4 sequencing, then it realize that there is a packet number 3 missing। जैसे ही इसको रिसीव करेगा, उसको पता चल जाएगा कि वो क्या रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव नहीं कर पा रहा है। D3 is missing, D3 is missing, D3 को मिस नहीं कर रहा है, D3 को उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उस केस में वो D4 मिलते ही एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। इस टाइम तक इसने D6 की ट्रांसमिट कर दिया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा NA किसकी 3, NA3 का मतलब हो गया नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3। इट मींस इट मिसिंग ए पैकेट नंबर 3, ये पैकेट नंबर 3 को मिस कर रहा है। तो गो बैक एंड मेथड क्या करता है? जैसे ही इसके पास पहुंची, सेंडर के पास, वो वापस किस पे चला जाएगा? गो बैक एंड मींस 3, वो डायरेक्ट सीधा तीसरे पैकेट के ऊपर चला जाएगा। यहां से वो पैकेट नंबर 3 वापस ट्रांसमिट करेगा, फिर उसके बाद कौन सा ट्रांसमिट करेगा? अगेन D4। वो उसने ऑलरेडी ट्रांसमिट कर चुका है, लेकिन फिर से ट्रांसमिट करेगा, फिर से शुरू हो जाएगा D5। मतलब क्या हुआ? गो बैक एंड का मतलब ये है कि पूरा का पूरा विंडो शिफ्ट हो गया है, पूरा का पूरा जो पीरियड है वो शिफ्ट हो गया है। कहां पर शिफ्ट हो गया है? वापिस जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट थी वहां पर शिफ्ट हो गया। दैट इज गो बैक एंड मेथड। ये अपना क्या कहलाता है? गो बैक एंड मेथड। सिमिलर केस कहां पर होता है? जब एक्नॉलेजमेंट ना पहुंचे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचती है तो भी वो क्या करता है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टाइम आउट हो जाता है। जैसे एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची तो मान के चलो कि उसके पास D3 नहीं पहुंची, D4 की पहुंच गई। D4 की पहुंचने के बाद क्या हुआ? वो जैसे यहाँ पर D4 की एक्नॉलेजमेंट पहुंची, ये समझता है कि D3 की इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं है। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज एट सेंटर लेवल, देन इट continuously start with D3, D4, D5
सो ऑन, इस तरीके से लगातार चलता रहता है। मतलब फिर से वही जो रूटीन के अंदर जिसकी नहीं पहुंची है उस पैकेट से शुरू होता है और उस विंडो को पूरे को वापस से सेंड करता है। इसको अपन बोलते हैं गो बैक एन मेथड। देयर इज ए ह्यूज ड्रॉबैक ऑफ गो बैक एन मेथड। आपको देखते समझ में आ रहा है इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? We simply know that retransmission of data is higher. Retransmission rate of data is higher. जैसे ही गो बैक एन होता है इसका मतलब रीट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है। मतलब एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के कारण पूरा एक विंडो वेस्ट हो रहा है। इसके पास ये पहुंच चुका है D4, D5 और D6 और फिर से इसके पास D3, D4, D5 और D6 को यहाँ तक पहुंचा। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो दोनों का वेस्ट हो रहा है, एट सेंडर लेवल एंड एट रिसीवर लेवल। बोथ हैज ड्रॉबैक्स। सो इट मींस that huge drawback can matter a lot in data transmission, in data transmission scenario, data transmission speed, इन दोनों के अंदर ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उसको अलग करने के लिए या उसको अपन ये कह सकते हैं कम करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी नंबर बी इज इंप्लीमेंटेड, दैट इज selective reject AI। That is selective reject AI। And its name suggests, selective reject में क्या होता है? जो इसके नाम से अपन स्पष्ट कर रखा है, इसके नाम से अपन ने परिभाषित कर रखा है। सेलेक्टिव रिजेक्ट, इट मींस जो डेटा पैकेट पर्टिकुलरली नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के साथ आया है सिर्फ वही ट्रांसफर किया जाए, नॉट ऑल सीक्वेंस ऑफ इट्स फ्लो। उस पूरे को करने की आवश्यकता नहीं है, उस पूरे को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इट इज हार्ड टू इंप्लीमेंट, इसको लागू करना मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि अपने पास डेटा जो होता है वो एक पूरा विंडो के अंदर होता है, स्लाइडिंग विंडो के अंदर होता है। सीक्वेंस नंबर से तो अपन बिना सोचे समझे ट्रांसमिट कर सकते हैं, रीट्रांसमिट। बट इन सेलेक्टिव रिजेक्ट वी हैव टू फाइंड व्हिच वन और व्हिच पैकेट इज नॉट ट्रांसमिटेड सक्सेसफुली और व्हिच हैज डैमेज, देन दैट पर्टिकुलर पैकेट इज रीट्रांसमिटेड अगेन, नॉट इट्स फॉलोइंग और इट्स सीक्वेंशियल पैकेट्स। इसमें क्या होता है कि जो पैकेट अपना नहीं पहुंचा है सिर्फ वही रीट्रांसमिट किया जाता है, उसके बाद के जितने पैकेट्स हैं वो अपन ऑलरेडी ट्रांसमिट कर चुके हैं वो नहीं लिए जाते। कैसे? सपोज इन सेम एग्जांपल D4, D5, D6, these are elements and there is a negative NA3, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 3। इसका मतलब क्या हुआ कि वही D1 पैकेट भेजा, D2 पैकेट भेजा, D3 पैकेट लॉस्ट किया। तो इसके पास पहुंचा D1, D2, D3 नहीं पहुंचा, D4 पहुंचा, तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट D3 के लिए। जैसे ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यहां पहुंची, ये तब तक D6 तक पैकेट भेज चुका। After that, it retransmitted packet number 3, means D3. D3 को ट्रांसमिट करेगा, ये D3 इसके पास नहीं है। Then after it does not retransmit D4, D5, D6. ये D4, D5, D6 को कभी भी ट्रांसमिट नहीं करेगा। इसको ट्रांसमिट करेगा आगे D7। मतलब D4, D5, D6 के बाद D3 सिर्फ वही ट्रांसमिट किया जिसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट पहुंची है, which is selectively reject, जो selectively reject है। उसके बाद उन्हें अपना जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था उसको फॉलो करना है, फिर से उसी चीज को लगातार क्रम में डिसाइड करता हुआ चलता है। दैट इज नोन एज सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। उस पूरे को अपन क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। तो ये ओवरऑल मेथड है which we implements during error control।
So today we discussed error control mechanism, or we can say last working or last functioning of data link layer, that is error control. Error control based on flow control, which has two mechanisms. Number one is stop and wait ARQ. Second one is sliding window ARQ. Both are implements as different level in data communication. इसमें ये एरर कंट्रोल जो टॉपिक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मोस्ट इफेक्टिवली, और वी कैन से दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर. सो यू मस्ट प्रिपेयर दैट टॉपिक. तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार. अगर कोई इसमें गड़बड़ होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, देन यू कैन आस्क मी, मैसेज मी और कमेंट मी. थैंक यू.